actually to make the budget. If you are planning to establish a new business in hospitality or in tourism business, okay. So first concept is sales concept. The sales concept defined as, in general term, sales is defined as the revenue resulting from the exchange of product. As we have already discussed this concept in marketing subject, okay. गुड मॉर्निंग सर। Morning, morning. सर आपकी वॉइस वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। या सो अभी ठीक है ना? बहुत सर क्लियर तो आ रही है लेकिन Marketing subject, okay, previously. So here we will also understand the basic concept of the sales. If you are talking about the cost control term, okay. uh, as we have understand some cost concept, so there is mandatory to understand the sales concept. If we are putting some cost in our restaurant, newly established business, so we need to sell our product as well, okay, to get the revenue or to get the monetary benefit from the people, okay, or for organization. So if we are talking about in general term, what is the sales? So sales is nothing. Sales is the only exchanging the product, okay. So for instance, we are giving some services and the product thing to the people, and are they are give us the some monetary thing, okay, some monetary value of the specific product. So we can call it as a sales, okay, in exchange of the product. So in this, if we are talking about in simple term, so जब भी हम अपने जो प्रोडक्ट अगर हम किसी गेस्ट को दे रहे हैं, चाहे फिर वो रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, या फिर पब बार कुछ भी हो, वहां पर हम अपने सर्विसेज उनको देते हैं और वो उसके उसमें हमें एक्सचेंज में एक मॉनेटरी वैल्यू देते हैं, एक स्पेसिफिक मॉनेटरी वैल्यू। इट मींस कि अगर कोई सर्विसेज हमारी, अगर वो डिनर के लिए आ रहा है या फिर ब्रेकफास्ट के लिए आ रहा है, तो ब्रेकफास्ट की हमारी कॉस्ट रहती है, हमारा जो प्राइस है वो 100 रुपीज का है, ठीक है। तो हम उसको ब्रेकफास्ट 100 रुपये में दे रहे हैं, यानी हम उसको ब्रेकफास्ट दे रहे हैं और हमें वो एक्सचेंज में कुछ मॉनेटरी वैल्यू दे रहा है, वो जो कि 100 रुपये है, ओके। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम सेल्स बोलते हैं, ओके। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ सेल्स. So the sales concept in F&B operation usually can be expressed as a monetary and non-monetary values, okay. So in F&B ऑपरेशन में हम जो सेल्स का कॉन्सेप्ट है वो हम मॉनेटरी भी लेते हैं और नॉन मॉनेटरी भी लेते हैं, दोनों तरह से ही इसको एक्सप्रेस किया जाता है। वैसे नॉर्मली हम मार्केटिंग में देखते थे कि जो हम सेल्स का कॉन्सेप्ट देखते थे वहां पर हम मॉनेटरी की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर F&B ऑपरेशन में हम जो सेल्स का कॉन्सेप्ट है वहाँ मॉनेटरी भी लेते हैं और नॉन मॉनेटरी भी। अब यहाँ पर नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है? देखो, मॉनेटरी का मतलब जब whenever we are providing some services to the people, okay, to the guest, to the client, or a tourist, okay. So we are providing not just a product, we are also providing an experience to the client, okay, or a tourist. So in exchange of that, he will give us some feedback on TripAdvisor or other websites, or he will create some blogs or some other articles, okay, articles to give us the feedback. So this is the non-monetary, which is not related to monetary value, and monetary, which is related to the money, okay, which he is already giving in exchange of the services. We are giving the services to the people, and people are giving us the money in exchange of the services or the product. And if we are talking about the non-monetary, so in non-monetary, we will provide experiences. They provide us feedback, okay, and they provide us some suggestions for the to better the services or to better the product, okay. So this is the concept of the sales. Now understood. We are moving further with the next concept, which is monetary term, okay. So here we are going to discuss the monetary term which is related in the sales, okay. So monetary term, total sales, is term that refer to the total volume of the total volume of expressed in dollar term. So here we mostly concept we will discuss in dollar term, okay, because dollar is a global currency. INR is not a global currency. If you aware about the currencies, so you need to understand that there are 8 type of currencies are available in
in the world, across the world, which is most popularly known as the global currency and acceptable in each part of the globe. Okay, so these are the global currency. So here we whatever concept we will learn or we will understand, we basically learn with the global currency, normally with dollar. Okay. Okay, so in dollar term, for instance, any given period such as week, a month, or a year, we can divide it total sales. So total sales in three category. Okay, we can categorize the sales by category. Okay, we can categorize the total sales by server, and we can also classify or categorize the total sales by the seat. ओके अब हमने जैसे टोटल सेल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि टोटल सेल्स क्या होती है. दिस इज अ टोटल वॉल्यूम which is a given a specific period of time. अगर हमें टोटल सेल्स if we are having a restaurant, okay, so अगर हमें टोटल सेल्स निकालनी है तो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की सेल्स देखेंगे. हमने पीरियडिकली देखनी है तो फिर हमने मंथली बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक है, और या फिर हम जो 3 मंथ का क्वार्टर होता है, 4 मंथ का, 4 मंथ का, वो कर सकते हैं, या फिर हम 6 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें देख सकते हैं. तो दिस इज द स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम जब चीजें देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज टोटल सेल्स. या हम वीक के लिए देखें, मंथ के लिए देखें, ईयर के लिए देखें, क्वार्टरली बेसिस पे देखें, ठीक है, नॉन क्वार्टरली बेसिस पे देखें, या फिर हम 6 मंथ बेसिस पे देखें. तो हम इस पीरियड के लिए जो भी सेल्स देखेंगे टोटल सेल्स निकालने के लिए, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा. तो हम इसको कैटेगराइज करने के लिए हम किस तरह से इसको काउंट करेंगे, तो हम इसको कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले हम बाय कैटेगरी देख सकते हैं, बाय सर्वर और बाय सीट. 3 तरीके हैं. तो फर्स्ट. सर यस. सर बाय सर्वर कैसे होगा? हाँ, बता रहे हैं, अभी रुको. ओके, पहला है बाय कैटेगरी. बाय कैटेगरी इज टोटल डॉलर वॉल्यूम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी आर टोटल फूड सेल्स और टोटल बेवरेजेस सेल्स. ओके, और टोटल स्टेक सेल्स और सी फूड सेल्स. इट मींस बाय कैटेगरी मतलब हमने, अगर मेरा कोई रेस्टोरेंट है तो वी आर प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, alcoholic, non-alcoholic, and food, all type of food, fast food, junk food, okay, and the normal food as well. तो हमें अगर टोटल सेल्स निकालनी है तो वी कैन कैटेगराइज दी ऑल द थिंग्स बाय कैटेगरी. वन कैटेगरी इज फास्ट फूड, सेकंड कैटेगरी जंक फूड, थर्ड कैटेगरी नॉर्मल फूड, ओके, एंड फोर्थ कैटेगरी अल्कोहलिक बेवरेजेस, फिफ्थ कैटेगरी नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, सिक्स्थ कैटेगरी स्टीक सेल्स, okay, or seventh category is seafood, and eighth category which is purely related to the chicken and the non-veg materials, okay, non-veg foods. So we can categorize all the things and we can calculate the total sales, but we have got the total sales in a specific period of time. Okay, how to calculate the total sales by the server? Okay, so by the help of this server category, this is the total dollar volume of sales for which a given server has been responsible in the given period. Okay, this is to help the management to make judgment on employee performance. Okay, so this server categorized in category, we can, how can we calculate the total sales? So in this concept, we provide some targets to the server or to the waiters that you have to complete this task or you have to complete $10,000 sales in a 6-month period. So in this, just a moment. Yeah, I'm sorry for the long hold. Okay, if we are talking about the by server, so in this concept, we will provide some targets to the server or to the waiter to complete the targets, or we can calculate this target by the completed target by the server or by the specific individual. For instance, if we are having a restaurant in a particular area, so we are having a 2 server or 2 waiter, and we have provided 10,000 rupees target for a 2-month period. Okay, so if they complete the target, we can include we can also categorize or we can calculate the target that they have completed 10,000 rupees target in a specific period of time. So this is a one type of, and we can judgment this his performance by
completing his or her target, okay, the specific time. So we can also calculate the sales thing, a total sales by this concept as well, okay. So next is by seat. By seat, how we can calculate the total sales by seat? Usually for a ERPA, total dollar sales divided by the number of seats in the restaurant, which means we can also take up this example for a hotel industry, where we can see the total room occupancies, कि कितने रूम हमारे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में फुल रहे और कितने नहीं रहे. Similarly we can take up this example for the restaurant, okay. If we are talking about the food and beverages, restaurant, dhabas or other restaurant chains, so where we can calculate the sales, how many seats are vacant in specific duration of time, and how many seats are fully occupied in 6 months. For instance, if we are having a 10 seat in our restaurant, for the 10 वन, मतलब कि हमारे पास 10 सीट हैं, तो 10 में अगर हमारे पास 2-2 का रेशो है, ओके, एक सीट में 2 लोग अगर ऑक्यूपाई हो सकते हैं, तो हमारे पास 10 हैं, तो 10 में हमारे पास 10 नहीं होती हैं, 5 में 10 ही लोग बैठ पाते हैं, बाकी रेस्ट 5 सीट्स आर वेकेट फॉर द 6 मंथ पीरियड. सो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस थिंग कि वेकेट सीट को हम छोड़ दें और जो हमारी ऑक्यूपाइड थी उनको कैलकुलेट कर लें, तो हमारा टोटल सेल्स आ जाएगा, क्योंकि जो सीट हमारी ऑक्यूपाइड थी, जिन पे हमारे कस्टमर आए थे, उन्हीं में हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल हुआ है, बाकी वेकेट सीट तो वेकेट ही रही है. सिमिलरली एज वी see in the hotel industry, in similar way we can also calculate this thing in restaurant or food and beverages services, okay. Understood? Okay. Moving further to the next concept, which is a sales price. Okay, please make a note that we are just talking about here the monetary term. After that, perhaps we will talking about the non-monetary. Okay. Okay, just we are talking about here the monetary term, okay. How can we get the monetary term by the sales, okay, and how to calculate? So here the sales price refer to the amount of charge which is each customer purchasing 1 unit of particular item. It can be a single meal or it can be entire meal, okay. So this concept is very simple, where we directly refer the sales price as a amount of charge which we are charging to the customer, okay, in exchange of the services or in exchange of the product, ओके. तो सेल्स प्राइस आप समझ गए होंगे यहाँ पर. दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. सेल्स प्राइस मतलब जो भी हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं वो हमारा सेल्स प्राइस है, चाहे वो चाहे 1 प्लेट मोमो ले रहा है, चाहे वो 10 प्लेट ले रहा है, ठीक है. तो जो भी हम उसको चार्ज करेंगे वो उसका सेल्स प्राइस होगा, ओके. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एवरेज सेल्स. एवरेज सेल क्या होता है? एवरेज सेल इन बिजनेस is determined by adding individual sales to determine a total and then dividing by the total by the number of the individual sales. Two types of commonly calculated average sales. तो average sales दो तरह से calculate की जाती है, पहले per customer and the per server, okay. So यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया है उन्होंने. average sales is business determined by the adding individual sales to determine the total and then the dividing that total sales. तो हम इसका फॉर्मूला भी आगे देखेंगे कि हम जो टोटल सेल्स होती है उसको हम डिवाइड करेंगे कि जो हमारी टोटल सेल्स है, जैसे हमने कोई सेल्स की है तो हम उसकी इंडिविजुअल की सेल्स प्लस करके और उसको डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स से, तो हम अपनी एवरेज कॉस्ट निकाल देंगे. जैसे हमने अभी आपको बताई थी जी, अगर हमारा जो टोटल प्राइस अगर 5 नाइट का 10,000 है, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा उसका, या एवरेज सेल क्या होगी. तो वैसे ही हम इसको भी निकालेंगे. इसका हम अभी आगे देखेंगे, आगे स्लाइड में और समझ आएगा आपको. So next is we can calculate the average sale by two method, per customer and the per server, okay. So per customer is the result of dividing total dollar sales by the number of sales, okay. इसमें कैसे करेंगे हम, देखो पर कस्टमर के हिसाब से, अगर हमारी 10,000 की सेल है, ये हो गई हमारी टोटल सेल. 6 महीने के लिए हमने 10,000 रुपए की सेल करी और हमारे पास 50 कस्टमर आए, तो हम 10,000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पर कस्टमर कॉस्ट आ जाएगी, या फिर हमारे पर कस्टमर क्या हो जाएगी, पर कस्टमर सेल आ जाएगी कि हमारे एक कस्टमर से कितनी सेल हुई है,
समझ रहे ना हम क्या बता रहे हैं आपको? 10,000 की हमारी सेल अगर टोटल है 6 महीने की और 50 कस्टमर ने हमारे पास विजिट किया है उस ड्यूरेशन में, तो हम 10,000 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, वो हमारी जो कॉस्ट होगी वो कहलाएगी पर कस्टमर कॉस्ट। ठीक है, जिसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। एवरेज भी तो ऐसे निकालते हैं, आप अपने मार्क्स पे कैसे एवरेज निकालते हैं, जितने आपके पास मार्क्स आए हैं और जितना टोटल नंबर का पेपर है। सपोज आपका 500 नंबर का पेपर है और आपको 400 मिले हैं, तो 400 डिवाइड बाय 500 करते हो ना, वैसे ये भी है। ओके, सो पर सर्वर कैसे निकालेंगे? पर सर्वर इज टोटल डॉलर सेल्स फॉर एन इंडिविजुअल सर्वर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड बाय द इंडिविजुअल। ओके, यहाँ पर भी हम ऐसे निकालेंगे कि जो आपके टोटल सेल्स है, देखो टोटल सेल्स हमने जो पढ़ी है वही है यहाँ पर, ये टोटल सेल्स जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हुई है, और डिवाइड करेंगे हम जो सर्वर है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 3 सर्वर हैं, तो हम अगर हमने 10,000 की सेल्स की है फॉर इंस्टेंस, 10,000 10,000 इसको यूज करके देखते हैं। ओके, चलो हम आपको व्हाइट बोर्ड में बता देंगे इसको। जो 10,000 रुपीज हैं डिवाइडेड बाई करेंगे हम इसको 3 से, जो हमारे पास 3 फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास 3 सर्वर हैं, सिर्फ 3 मीटर हैं, तो हम उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो पर सर्वर हमारी सेल्स हो जाएगी। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? या सेकंड एग्जांपल इज यासिर, वन ऑफ द सर्वर, okay, had 30 customer and that total sales of $565 on the Saturday night of February 13. Average sale per server for Jim would be calculated as follows. Okay, so अब हम इसको कैसे करेंगे कि हमने, अब हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है, जो यासिर है। तो यासिर ने क्या किया कि उसने 30 कस्टमर को सर्व किया है और उसकी टोटल सेल्स हुई है $565। ठीक है, तो 565 को हम डिवाइड करेंगे 30 से, तो जो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो हमारी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, या फिर हमारी एवरेज सेल कॉस्ट नहीं आएगी, यहाँ पर सेल्स आएगी। कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं, ये सेल्स आएगी हमारी एवरेज सेल। ठीक है, और नेक्स्ट अभी हम इसको करेंगे व्हाइट बोर्ड में भी। ठीक है, अब आते हैं हम नॉन मॉनेटरी में। चलो हम नॉन मॉनेटरी को अभी थोड़ी देर में लिखेंगे, पहले हम कुछ समझ लेते हैं। टोटल मतलब टोटल ही है कि जो भी हमने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सेल्स ली है, सेल्स हमने की है, वो हमारी टोटल होगी। फॉर इंस्टेंस हम 6 महीने का एस्टिमेट लगा रहे हैं अपने रेस्टोरेंट की रेवेन्यू देखने के लिए कि हमने 6 महीने में 50,000 रुपये कमाए। एक सेकेंड, ठीक है, 50,000 रुपीज हमने कमाए 6 मंथ के पीरियड में अपने रेस्टोरेंट में। लॉकडाउन था तो हमें ज्यादा कमाई नहीं हुई, वैसे लाखों में हो जाती है एक महीने में। ओके, ये जस्ट एग्जांपल है। और हमारे पास कितने सर्वर हैं? चलो हमारे पास एक सर्वर है बाय कस्टमर हम करते हैं पहले। तो एक सर्वर ने हमें जो हमारा सर्वर है उसने 50,000 की सेल दी। ठीक है, तो 50,000 की सेल दी और उसने सर्व कितने को किया, हमने देखा कि हमारे पास कस्टमर कितने हैं, हमने बिल अपने चेक करे, हमारे पास सिर्फ देखा मैंने कि 30 कस्टमर आए। ठीक है, अब 30 कस्टमर आए हमें, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी एवरेज सेल। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 हट जाएगा, जिनको मैं कैलकुलेशन आती होगी, 0 से 0 हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, इफ यू आर डिवाइडेड बाय दी 50,000, अब 50,000 यहाँ पर टोटल सेल्स है, और जो हमारा जो कस्टमर सर्व हमने किए हैं, जो हमारे स्पेसिफिक सर्वर ने कस्टमर सर्व किए हैं वो 30 हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा तुम्हारे, जो हम इसको डॉलर में ले लेते हैं। ठीक है, चलो डॉलर में या फिर आईएनआर में कर लेते हैं। करो आईएनआर हमारा जो हो जाएगा, इतनी हमारी ये हो जाएगी एवरेज सेल। ठीक है, ये हमारी एवरेज सेल हो जाएगी। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे अपने कैलकुलेटर से तो इतना कॉस्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपका है एवरेज कॉस्ट, एवरेज सेल का कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर हम दूसरा तरीका क्या है इसका, बाय सर्वर से। ठीक है, अगर सिमिलरली, ये एवरेज सेल पर पर्सन निकालिए क्या? नहीं, हाँ, ये पर जो कस्टमर आए हैं हमारे पास विजिट हुए हैं ना, ये एज पर द कस्टमर है।
और अगर हम तो सर्वर सर के 30 कस्टमर्स विजिट हुए थे, उन हाँ 30 कस्टमर्स से हमें टोटल 50,000 जो है हमारी इनकम जनरेट हुई, सेल्स हाँ जनरेट हुई। हाँ तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पर पर्सन की सेल निकल आएगी ना, कि पर पर्सन से हमें इतने रुपए मिले हैं। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, एवरेज सेल निकल जाएगी हमें कि पर पर्सन से इतने पैसे मिले हैं। ओके सर। अब हम सर्वर के हिसाब से देखेंगे तो सर्वर हमारे पास अगर 50 हैं, सिमिलरली अगर 50 सर्वर हमारे पास हैं तो डिवाइड कर देंगे हम इसको 50 से, तो हमारे पास पर पर्सन जो पर हमारा सर्वर है ना उसकी कॉस्ट आ जाएगी कि हमारे पर जो सर्वर है उसने कितनी सेल की है। दो तरीके हो गए, ठीक है, ये तो 5,000 है, 50,000 हो गए। 50,000 जीरो से जीरो चला जाएगा और 5 धाम 50, तो ये हो जाएगा सर एक और जीरो आएगा। 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज पर हमारी हो जाएगी क्या बोलते हैं उसको, पर सर्वर कॉस्ट, जो हमारे एक सर्वर ने कमाई है एवरेज। ठीक है, और एक तरीका हो सकता है कि हमारे पास 50,000 की सेल है, हमारे पास एक ही सर्वर है जिसने 30 को सर्व किया है, ठीक है, तो भी ये कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब समझ आया कॉन्सेप्ट वाला? डिफरेंस क्या है सर इन तीनों? स्लाइड okay, here we will discuss some other term, some other concept which is related to the non-monetary. First is total number sold. The total number sold we can refer to the total number of menu item sold in the given time of period. Okay, मेनू में आपके जितने भी आइटम हैं, आपने कितना आइटम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सेल किए हैं वो आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन मॉनेटरी में। ठीक है, ये टोटल नंबर सेल्स हो जाएगा या फिर टोटल नंबर सोल्ड, तुमने कितने नंबर सोल्ड किए। ठीक है, इसमें आइटम हमें देखने पड़ेंगे कि मेनू के कितने आइटम हमारे सेल हुए हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। जैसे कि हम फॉर इंस्टेंस हम अगर बात करें किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की, हम अगर विंटर की बात करें, तो अगर हम हमारा रेस्टोरेंट है तो हमारे पास मंचूरियन भी सर्व करते हैं, तो हमने देखा कि मंचूरियन और सम बर्गर भी हमारे पास हैं, और ये चिली पोटैटो वाले जो थिंग है, ठीक है, ये हमारी ज्यादा सेल में, ये बाकी जो आइटम थे हमारे उतने नहीं हुए। तो हमारे जो टोटल नंबर सोल्ड है वो हम मेनू आइटम में देखेंगे कि हमारे 3 आए हैं, तो ये हम तब बोलेंगे कि हमारे टोटल नंबर सोल्ड क्या 3 है। ठीक है, जो हमने अभी सोल्ड किए हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। अभी कवर क्या होता है? कवर इज द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्क्राइब वन डिनर रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी ओके ऑफ गुड द पर्सन कंज्यूम्स। अब ओके, तो यहाँ पर कवर का मतलब है विच इज डायरेक्टली डिस्क्राइब द एक डिनर में क्या क्वांटिटी, हम इसमें ये नहीं देखेंगे क्वांटिटी क्या थी। ठीक है, अब इसमें ये देखेंगे कि हम वो सही थी या नहीं। ठीक है, तो जैसे ये कह रहे हैं कि कवर इज द टर्म यूज डिस्क्राइब टू वन डिनर रिगार्डलेस, we cannot include the quantity thing, okay, regardless of the quantity of good the person consume। ओके, हम इसमें क्वांटिटी नहीं देखेंगे कि कितनी उसने 2 थाली खाई, 4 थाली खाई, 50 थाली खाई, ये नहीं देखेंगे हम। ठीक है, तो हम इसको कवर बोलेंगे। ओके, सो टोटल कवर होगा। टोटल कवर को हम कैसे करेंगे? तो टोटल कवर में रेफर्स टू दी टोटल नंबर ऑफ द कस्टमर सर्व्ड इन अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड, हेल्प टू मेक जजमेंट एंड कंपैरिजंस। ओके, जैसे हम उसमें करते हैं सेल्स में कि हमारे एक बंदे ने इतनी सेल्स की, तुमने कम की, जैसे हम टारगेट दे देते हैं। ठीक है, तो टोटल कवर भी ऐसे ही है कि टोटल कवर में हम टोटल नंबर ऑफ द कस्टमर हमने कितने सर्व किए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हमने कितने कस्टमर को सर्व किया है, ये हमें हेल्प करता है कंपैरिजन करने में और जजमेंट करने में कि हमारी सेल्स किस तरह की है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कवर। सर आप समझ रहे होंगे कवर और टोटल कवर में यहाँ पर क्या फर्क। हाँ जी, सर कवर फिर से बता दीजिए। हाँ, कवर का मतलब है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने लोग हमारे यहाँ पर आए। पहला तो कवर है कि एक आदमी ने हमारे पास कितने लोग डिनर के लिए आए, ये हो गया पहला कवर। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि उसने क्वांटिटी कितनी ली है फूड एंड बेवरेज की, उसने कितने डिनर की थाली ली है या फिर उसने कितना ब्रेकफास्ट लिया है, क्वांटिटी नहीं देखेंगे हम कितनी क्वांटिटी ली है उसने, हमने कितने कवर किए हैं बस ये देखेंगे कितने कस्टमर हमने कवर किए हैं फॉर डिनर।
एक डिनर के लिए हमने कितने लोगों को कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे 15 लोग आ रहे हैं, 15 लोगों ने 15 ही लोगों ने हमने 15 लोगों ने डिनर का ऑर्डर दिया, तो हमने 15 में से सिर्फ 5 को ही कवर कर पाया, तो हम 5 कवर लिखेंगे, हमने 5 कवर किए हैं, ठीक है। और ऐसे टोटल कवर में क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सर्व, ठीक है। अगर हमने 5 कवर किए हैं वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हैं, हमने शाम में 5 कवर किए, सुबह में 10 कवर किए, दोपहर में 15 किए, तो टोटल को लगाएंगे तो हो जाएगा टोटल कवर। इससे हमें हेल्प होगी कि हमने कितने लोगों को सही से कवर किया और कितनों को नहीं कर पाए। कई बार होता है रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है तो हम कुछ को कवर कर पाते, कुछ को नहीं कर पाते, वो कवर है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सर कवर सिर्फ डिनर के लिए ही होगा? हाँ जी, कवर सिर्फ डिनर के लिए होगा नहीं और ये टोटल कवर एग्जाम्पल है, सर? ये एग्जाम्पल है, डिनर के लिए नहीं होगा ये। आप इसको ब्रेकफास्ट के लिए ले सकते हैं, लंच के लिए ले सकते हैं। बेवरेजेस में ना अल्कोहलिक देख सकते हैं आप, अल्कोहलिक जो आप सर्व कर रहे हैं, तो आप अल्कोहलिक में कितने लोगों ने कितने लोगों को आपने कवर किया, वो भी कवर में आ जाएगा। यहाँ स्पेसिफिक ये खाली डिनर के लिए वैसे हम बता रहे हैं आप, ठीक है। ओके, तो अगर हम यहाँ पढ़े एवरेज कवर की बात करें, तो एवरेज जहां भी आएगा ना, एवरेज आपका वर्ड, एवरेज का मतलब सीधे जो टोटल होगा उससे डिवाइड कर लेंगे, जो हमारे पास जो दूसरी थिंग हो, दूसरी चीज होगी, उसको डिवाइड कर देना, एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज कवर इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग अ टोटल नंबर ऑफ कवर फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम बाय सम अदर नंबर सच एज आवर ऑफ ऑपरेशन, डे ऑफ ऑपरेशन और नंबर ऑफ सर्वर। तो हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं 3 तरीके से। पहला है कवर पर आवर, हमने 1 घंटे में कितने लोगों को कवर किया, ये हमारा एवरेज निकल जाएगा। एक दिन में हमने कितनों को कवर किया, ये हमारा डे का निकल जाएगा एवरेज। और अगर हमने हमारे पास 3 सर्वर है, तो हम सर्वरों से डिवाइड कर देंगे, तो हम इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक सर्वर ने कितने कस्टमरों को कवर किया है। अगर मेरे पास 4 सर्वर हैं, 4 में से 2 बहुत अच्छा काम करते हैं, 2 एकदम इधर से उधर ही घूमते रहते हैं, काम करते नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में मैं चारों को रखूंगा नीचे नंबर ऑफ सर्वर में, और टोटल बिल मैं देखूंगा कि टोटल बिलिंग कितनी हुई है, 15 की बिलिंग हुई है, तो फिर मैं अगर उसको डिवाइड कर दूंगा तो फिर मेरे पास टोटल सर्वर की कॉस्ट वो आ जाएगी कि कितने कि पर सर्वर ने कितने लोगों को कवर किया है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सीट टर्नओवर, कि हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हमारे पास कितनी सीट रह गई और कितनी हमने ऑक्युपाइड थी। ओके, द सिंपली सीट टर्नओवर रेफर टू द नंबर ऑफ सीट ऑक्युपाइड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, ओके, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, सीट का टर्नओवर निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये एग्जांपल दिया है, 140 customers served during that one Saturday meal. The restaurant has 75 seats, so seat turnover would be calculated as follows. अब हमारे पास 140 कस्टमर हैं और 75 सीट्स हैं, तो 2 चीजें हैं, तो सीधे 140 को डिवाइड कर दो 75 से, ये हमारा टर्न हो जाएगा, सीट टर्नओवर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, ये सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट आपके एवरेज से रिलेटेड हैं अभी। सेल्स मिक्स, तो सेल्स मिक्स टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेटिव क्वांटिटी सोल्ड ऑफ द मेनू आइटम कंपेयर टू अदर आइटम्स इन द सेम कैटेगरी। ओके, जैसे हमने आपको अभी कैटेगरी वाइज एक हमने पढ़ा था पीछे कि हम कैटेगरी वाइज भी निकाल सकते हैं सेल्स, टोटल सेल्स है, तो टोटल सेल्स निकालने के लिए हमने कैटेगरीज वाला मेथड लिया था। इसमें हम देखेंगे सेल्स मिक्स क्या होता है। सेल्स मिक्स का मतलब हम बहुत सारे कैटेगरी एक साथ कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको उस वक्त बताया था कि मेरा रेस्टोरेंट, इफ वी आर हैविंग अ रेस्टोरेंट एंड वी सर्व n number of numerous type of meals, okay, and numerous type of beverages including alcoholic, non-alcoholic, okay. So for this we have to make some categories to count the total sales, okay, and when we combine or club all these categories we called as a sales mix, okay, sales mix. These are all the different type of category meal or the beverages. If we mix or club each other, okay, then we can call as a sales mix. Mix से समझ जाओ, mix sales, okay. Sales mix for sugar spice restaurant, ये sales mix है उसका। एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है शुगर एंड स्पाइस, शुगर एंड स्पाइस रेस्टोरेंट का ये सेल्स मिक्स है। ये है इसका अगस्त 20, इसने यहाँ पर ये कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसमें हम मान लेते हैं कि इसका सेल्स मिक्स है अगस्त 2020 का। तो ये इसके मेन्यू आइटम है, ये इसका पोर्शन सेल है, ये इसका सेल्स मिक्स है, ओके। तो अब हम इसमें निकालेंगे कि
जो स्ट्रिप स्टिक है ये आपका सब रिलेटेड है, जिंजर है, फिर है लैम्ब चॉप, वेज पोटैटो और चिकन चॉप। इन्होंने इनको कैटेगराइज किया है अपने मेनू को इन कैटेगरीज में, ठीक है, जो इनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मिली है या फिर जो हुई है सेल हुई है। तो इन्होंने देखा कि सबका अलग अलग क्या पोर्शन है। जो स्ट्रिप स्टिक है इसका 1000 रुपीज का है, $1000 का सेल्स है इसका, 1200, 1800, 2400 एंड 1600। एंड दिस इज द सेल्स में इन परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं मालूम है?